System of linear equations. We deal with system of two linear equations with two variables. Ax plus by is equal to h. Here variable is x and y, and in equation 2 you can see that it's written cx plus dy is equal to k. Again the variable is x and y. So we deal with two equations with two variables, and we have to find value of both the variables by using different methods. Most in this course we use method of elimination or substitution method. Three methods are written here: elimination, comparison, and substitution. We use substitution, and elimination method you can opt any of the methods that you will learn here or those you have studied in your previous classes. Here this problem is on page 19 in your notes, page 19, and you can see it solved on that page as well. This is the problem. 2x minus 3y is equal to 7, 3x minus y is equal to 7. And we are going to solve the mesh problem. One equation is x minus y is equal to 3, and second equation is x plus 2y is equal to minus 3. Now we are solving it by the method of substitution. So from 1 I can take either value of x or y. दोनों में से किसी एक की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 I have taken value of x by moving y towards right hand side. So x will become 3 plus y. Now what I will do, I will substitute this value of x in equation number 2. Equation 2 क्या है? X plus 2y is equal to minus 3. Now I'll put value of x, that is y plus 3 in place of x. x की जगह यहाँ पे मैंने put कर दिया y plus 3. This plus 2y comes as it is equal to minus 3. अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया जी, 3y plus 3 is equal to minus 3. So after simplification the value of y is minus 2. We deal with two equations with two variables. Here we have computed the value of y. Now we will find the value of x by putting value of y in this most simplified equation. ये वाली जो आपके पास equation है जो आपने x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे मैं y की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई है उसको पुट कर देता हूँ, तो मुझे वैल्यू ऑफ x भी मिल जाएगी. पुटिंग वैल्यू ऑफ x y, दैट इज minus 2 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू y प्लस 3. x इज इक्वल टू y प्लस 3 में y की वैल्यू पुट की, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई. तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स थे x और y, दोनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली. एक्सरसाइज 1.2 में से सिर्फ आप 15 क्वेश्चंस करेंगे और उनमें से भी ओनली यू विल हैव टू डू द ऑड नंबर्ड क्वेश्चंस. इवन नंबर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. सो फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस. सम विल बी सॉल्व्ड बाय टेकिंग एलसीएम. सिंप्लीफाई आप करेंगे देन यू विल गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. फिर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड उन पे यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन 1 है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और 2 है y इज इक्वल टू 4x प्लस 7. तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप पे हमें इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दोनों इक्वल टू y हैं. मैं कंपेयर करता हूँ कि ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो मैं इस y की वैल्यू अगर इधर पुट कर देता हूँ तो मुझे मिल गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 7. अब मैं x को कैलकुलेट करना चाहता हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया. दिस बिकम 5 माइनस 7 एंड शिफ्टिंग 3x टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. 3x को जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया दैट बिकम 4x माइनस 3. यहाँ से 5 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 2. सो वैल्यू ऑफ x मिल गई माइनस 2. नाउ आई विल पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2. किसी एक में पुट करके मैं y की वैल्यू को कैलकुलेट करने लगा. So from 1 y is equal to 3x plus 5, putting value of x that is minus 2. ये minus 2 इधर पुट किया
-6 तो ये y की वैल्यू। अब ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट। अगर आप इन x और y की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करेंगे तो आप देखेंगे योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी सेम। Question number 3. 4x plus 5y is equal to -8, 3x plus y is equal to 5. We can solve it by comparison or elimination, comparison or substitution method as we have done in previous question. Here we will learn the new technique, that is elimination method. हम किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल कर लेते हैं, सेम कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y इज़ 5। अगर मैं इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास y का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। तो 5 और 5 सेम हो जाएंगे। अब इनके साइन सेम है तो मैं इनके साइंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू -8 एज इट इज। 5 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 से, 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब क्योंकि साइन सेम थे कैंसिल नहीं थे हो सकते, सब्ट्रैक्ट किया, साइंस ऑपोजिट हो गए, 5y कैंसिल हो गया। यहाँ से मुझे मिल गया -11x इज इक्वल टू -33, माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 को मैं किसी एक इक्वेशन में अबव वाली में पुट करता हूँ। मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, 3x, तो वैल्यू ऑफ x क्या है 3 इंटू 3 प्लस y, तो ये सिंप्लीफाई होकर y इज इक्वल टू -4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास फ्रैक्शंस आ गए। वी मेक दीज फ्रैक्शंस सिंप्लीफाइड इन सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय टेकिंग एलसीएम। इक्वेशन 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10, इक्वेशन 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। सो आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 एंड इक्वेशन 2 बाय 12 टू रिमूव द फ्रैक्शंस। नाउ 1 डैश एंड 2 डैश आर माय सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अब मैं इनको किस तरह कर रहा हूँ, मैं इन पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने लगा। ये मेरे पास 15 है, ये भी 15 है, ये तो ऑलरेडी इक्वल हो गए। साइन इसका क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, साइन भी पहले ही ऑपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। सो दीज विल बी कैंसल्ड आउट। 12 प्लस 4, क्योंकि ये दोनों के पॉजिटिव साइंस हैं, दिस बिकम्स 16a, -40 plus 12, this become -28. Dividing by 16, we get -7/4. Now putting value of a in any of the above equations. ऊपर वाली इक्वेशन में से किसी में पुट कर देते हैं। इसको मैंने 2 डैश में पुट किया, 4 इंटू वैल्यू ऑफ a -7/4 -15b, 4 और 4 कैंसिल हो गए, -7 -12 को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ और -15b को राइट हैंड साइड पे। तो इसके सिंप्लीफिकेशन से मुझे वैल्यू ऑफ b भी मिल गई। सो इस तरह हम लोगों ने a और b को कैलकुलेट कर लिया।